Preeti presenting the bulletin. In the next half an hour, we'll get you an account of everything that's been making it to the headlines. Our top story first. Prime Minister Narendra Modi will today dedicate to the nation the 750 megawatt solar project set up at Rewa in Madhya Pradesh. The solar park was developed by Rewa Ultra Mega Solar Limited, a joint venture company of Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam Limited and Solar Energy Corporation of India, a central public sector undertaking. Central financial assistance of 138 crore rupees has been provided to Rewa Ultra Mega Solar Limited for development of the park. This project comprises of 3 solar generating units of 250 megawatt each. The project will reduce carbon emission equivalent to approximately 15 lakh ton of CO2 per year. The Rewa solar project was the first solar project in the country to break the grid parity barrier. The Rewa project has been acknowledged in India and abroad for its robust project structuring and innovations, and has also received World Bank Group President's Award for Innovation and Excellence, and was included in Prime Minister's A Book of Innovation, New Beginnings. The project is also the first renewable energy project to supply to an institutional customer outside the state. 24% green energy from this plant will be supplied to Delhi Metro trains for the operations. Rest of the energy will be supplied to the state discoms of Madhya Pradesh. The project exemplifies India's commitment to attain the target of 175 gigawatt of installed renewable energy capacity by 2022. Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan had laid the foundation stone for Asia's largest ultra mega solar power plant in December 2017. And from here we go across to our correspondent Aditya, who is joining us to get us more on that. Aditya, in some while from now, we'll see the Prime Minister dedicate the 750 megawatt of solar project to India, to the country in Rewa in Madhya Pradesh. When we talk of how important and significant is this project, we've given a broad outline to our viewers. You spell out more details. प्रीति, थोड़ी ही देर में, कुछ ही मिनटों में अगर कहें तो भारत दुनिया के सामने सोलार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करने जा रहा है। बहुत बड़ा माइलस्टोन यहां पर रखने जा रहा है भारत, क्योंकि अपने आप में अगर इस रीवा के प्लांट की बात की जाए तो ये भारत सोलार के क्षेत्र में जिस तरीके से काम कर रहा है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण न सिर्फ भारत में है बल्कि दुनिया के तमाम उन देशों के सामने रख रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भारत के साथ शामिल हैं। वो तमाम देश जो लगातार सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो तमाम देश जिनको भारत लगातार ये कहता आ रहा है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आने वाले समय में काम करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इससे न सिर्फ हम सौर ऊर्जा से पर्यावरण पर ध्यान दिया जाएगा बल्कि आप आत्मनिर्भर भी बन सकते हो। ये तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं प्रीति, जिनको थोड़ी ही देर में भारत दुनिया के सामने रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे राष्ट्र को इसको समर्पित कर देंगे, और जैसे ही वो इसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे उस 750 मेगावाट क्षमता वाला ये प्लांट जो है, यहां से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसका 76% तो मध्य प्रदेश को मिलेगा। यानी कि अगर मध्य प्रदेश को 76% मिलता है तो 1600 करोड़ रुपए सालाना मध्य प्रदेश की ऊर्जा के क्षेत्र में जो पैसा खर्च होता था वो बचेगा। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो रेल को 24% बिजली जो है, ऊर्जा जो है वो यहां सप्लाई की जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल का 800 करोड़ का सालाना का जो बजट है वो उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। इसके अलावा आप एक चीज मान के चलिए, जहां पूरी दुनिया कार्बन एमिशंस पर को कम करने पर जोर दे रही है, ये माना जा रहा है इस संयंत्र को लेकर कि 15,60,000 टन कार्बन एमिशंस जो है वो कम होंगे, यानी कि ये 2 करोड़ 60 लाख पौधे लगाने के बराबर है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है पर्यावरण के क्षेत्र में भी अगर देखा जाए, क्योंकि आपको याद होगा जब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हुआ था उसमें जो तमाम देश एक मंच पर आए थे, तमाम राष्ट्राध्यक्ष वहां पर एक मंच पे थे, और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बात कही थी कि 1 लाख मेगावाट बिजली जो है वो हम सौर ऊर्जा से बनाने जा रहे हैं, बनाने का हमारा टारगेट हमने सेट किया है। और रीवा का जो ये प्लांट है जिसका थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं, राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं उस पूरे टारगेट को अचीव करने में एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। इसके अलावा
सबसे बड़ी बात इसकी यह है कि जो इसका पूरा क्षेत्रफल है वो करीब 1500 एकड़ से ज़्यादा का ये पूरा क्षेत्रफल है। बजट की अगर इसकी बात की जाए तो 4000 करोड़ के आसपास का इसका पूरा ये बजट है और इस पूरे बजट के बीच में अगर देखा जाए तो इसकी जो फंडिंग है ये दुनिया का, ये देश का पहला एकमात्र सौर संयंत्र होगा जहां पर जिसको वर्ल्ड बैंक और क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से जो है उससे फंडिंग की जा रही है। यानी कि हर क्षेत्र के लिहाज से समझने की कोशिश करें प्रीति, तो ये संयंत्र अपने आप में ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिहाज से भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड सेटर साबित होने वाला है। All right, Aditya, you're telling us how important this is. I would want you to spell out more. How has the Riva solar plant helped in turning the green economy, the country's green economy, into a corner, in the sense that we saw the way it broke the electricity grid point barrier in 2017, and also it brought forth the record low winning bid of. It started from 2.97 rupees per kilowatt per hour. So put these things together. Let us talk more about the Riva solar plant. How important has it been? देखिए बिल्कुल ये एक मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर इसको समझने की कोशिश करें, अगर हम इसको आत्मनिर्भर भारत से भी जोड़ना चाहें तो अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यही वो मध्य प्रदेश है जहां से आज से 12 से 15 साल पहले 2000 मेगावाट बिजली हुआ करती थी। धीरे धीरे उस पर काम होना शुरू हुआ, लेकिन जब से सौर ऊर्जा की अगर बात की जाए या पवन ऊर्जा की बात की जाए उस पर मध्य प्रदेश में लगातार काम होना शुरू हुआ और वहाँ पर उस क्षेत्र में देखा जाए तो जैसे ही आउटपुट मिलना चालू हुआ उस आउटपुट ने मध्य प्रदेश के बिजली उत्पादन को बढ़ा दिया और इससे ना सिर्फ बिजली उत्पादन बढ़ा बल्कि जो लागत लग रही थी, जो कीमत में एक समय ये था कि मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों से बिजली खरीदता था, आज मध्य प्रदेश की सरप्लस बिजली हो रही है मध्य प्रदेश में और ना सिर्फ मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों को बिजली दे पा रहा है बल्कि कई ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी हैं जहां पर बड़ी परियोजनाओं तक वहां चीजें पहुंच रही हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है और इससे एक चूंकि अगर फंडिंग की इसकी बात की जाए या फिर इसके पर यूनिट के हिसाब से अगर बात की जाए तो इसकी लागत भी कम आ रही है। लगातार मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार का ये कोशिश भी है कि क्यों ना सरकारी इमारतें भी जो हैं वहां पर सोलर संयंत्र लगाए जाएं ताकि धीरे धीरे जो पारंपरिक ऊर्जा से अलग निकलते हुए ये सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत शिफ्ट होना शुरू हो जाए। ऐसे में मध्य प्रदेश के कई ऐसी इमारतें आज भी बन चुकी हैं। मध्य प्रदेश का जो पुलिस मुख्यालय है उसकी छत पर सौर संयंत्र लगा दिया गया है। आप सोचिए कि उससे पूरा आज पुलिस मुख्यालय की जो बिजली की खपत है वो कम हो रही है। ये छोटे छोटे उदाहरण जो हैं, ये छोटी छोटी संयंत्र जो है ये भी अपने आप में एक धीरे धीरे एक बहुत बड़ा आउटपुट दे रहे हैं। प्रीति, all right, Aditya, thank you so much for joining us with those inputs. We'll come back to you again once the program begins. That was our correspondent Aditya joining us from Madhya Pradesh. In a while from now, we will see the program begin, wherein Prime Minister will dedicate to the nation the 750 megawatt solar power plant, solar project in Riva in Madhya Pradesh. We'll get to more on that, but meanwhile, let's get to other news we're tracking. Arrested gangster Vikas Dubey is killed in